Good morning, students. How are you? Fine. Today we will start our next chapter, chapter number 9, rational numbers. So, first of all, what is rational number? A rational number is the number that can be expressed in the form of P by Q, where P and Q should be an integer and Q should not be equal to 0. So, this is an irrational number definition. A rational number that can be expressed in the form of P by Q. So, अगर किसी नंबर में if any number हमारे पास कुछ ऐसा है जो फ्रैक्शनल की फॉर्म में है, लिख सकते हैं जिसे हम फ्रैक्शनल फॉर्म में, और that can be consist of two integers P and Q. So it can be represented by P by Q and Q should not be equal to 0. Consider some example. Let us take some example. 2 by 3. It is a rational number? Yes. 3 by 2. Is this a rational number? Yes. 5 is a rational number? Yes, because जब सिंगल डिजिट नंबर होगा तो उसके नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है? 1. तो it can be expressed in the form of this. So 5 and 7 and 8 ये सब हमारे पास क्या है? रेशनल नंबर्स. -20 ये भी क्या होगा? एक रेशनल नंबर. So each and every number -31 upon 2 it is also an irrational number, etc. Each and every number on the number line is a rational number. For example, every integer minus infinity से -2, -1, 0, 1, 2 and infinity, these all are rational numbers. These all are known as rational numbers. Okay, next one is all the natural numbers are also rational number. All natural numbers कैसे होते हैं? 1, 2, 3 dot infinity. All are natural numbers and all natural numbers are also rational numbers. All whole numbers are also rational numbers. Yes. 0, 1, 2, 3 up to infinity. Each and every numbers are also rational number. That we can also say a real number is always a rational number. So इन सभी इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं कि all real number are also rational numbers. Okay, so all real numbers are also rational numbers. Now, a zero, this zero, whether this zero is a rational number or not, so zero is also a rational number. How can we say zero as a rational number? Because zero is neither positive nor negative. So zero और जीरो के बारे में हम क्या कह सकते हैं? जीरो कैन बी एक्सप्रेस एज 0 by 1, 0 by 2, 0 by 8 एंड देन 0 by -5, कुछ भी बोल दीजिए आप. तो each and every number, each and every numbers are equal to 0. ये सभी के सभी नंबर्स किसके इक्वल हैं? 0 के इक्वल है. So this can be expressed in the form of P by Q. और यहाँ पर जो 0 by 0 की फॉर्म है is not valid. ये 0 by जो 0 की फॉर्म होती है is not valid. So इसे आप नहीं लिखेंगे. Otherwise 0 can be expressed in the form of 0 by 1, 0 by 2, 0 by something, 3, 4, 5, 6 कुछ भी लिख सकते हैं हम 0 by. तो 0 को हम जब किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं then we get, if we divide 0 by any number then what we get? 0. Then what we get? 0. Clear? So 0 is also a rational number. And one more thing कि 0 है ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव. ये भी याद रखना, ना वो नेगेटिव रेशनल नंबर है ना पॉजिटिव रेशनल नंबर है. 0, 0. So rational number can also be classified as the positive and the negative. अब ये कैसे होगा? अगर हमारे पास कोई रेशनल नंबर है 5 by 2, इनमें से न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कोई एक नेगेटिव है, then it is known as negative rational number.
5 upon -2, 8 upon -4, 4 upon -3, so -3 ले लीजिए, -5 upon 4. Each and every number are negative rational numbers. बट अगर हमारे पास दोनों के दोनों -5 upon -3 दोनों के दोनों नेगेटिव है, तो यहां से नेगेटिव कैंसिल होकर ये पूरा टर्म क्या बनेगा? पॉजिटिव. इट मींस अगर दोनों का साइन एक जैसा है तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर ही होगा. इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का साइन अगर सेम है, चाहे दोनों नेगेटिव हो चाहे दोनों पॉजिटिव हो, तो देन द रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव, बिकॉज दिस इज द रीजन. हमने जैसे सिंपलीफाई किया. So this is just an introduction of rational number. Now let us discuss next topic. Are multiplied by any non-zero number. अगर किसी रेशनल नंबर में उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम किसी एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें, then we get a rational number which is said to be equivalent to given rational number. Okay, just like an example is a 2/7. अगर हम इन दोनों नंबरों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, then what we get? 6 upon 40, 6 upon 21. Then 2/7 is equivalent to 6 upon 21. तो 2/7 जो होगा वो 6 upon 21 के इक्विवेलेंट होगा. 2/7 is equivalent to 6 upon 21. Clear है? Now next point, the rational number is said to be in the standard form. अभी हमने एक फॉर्म देखी थी पीछे 5 upon -3. ये एक नेगेटिव रेशनल नंबर है, बट इट इज नॉट ए स्टैंडर्ड फॉर्म. सबसे पहली बात कि हमने एक और फॉर्म देखी थी 4, जैसे भी देखा हमने 6 upon 21. It is also not in standard form. Not in standard form. Okay. So a rational number is said to be in the standard form if the denominator is positive, first one. तो इसमें denominator positive नहीं है, इसलिए ये एक standard form में नहीं है. And the numerator and denominator have a common factor other than 1. इनके पास कुछ common factor है. Yes. इसके पास भी और इसके पास भी एक कॉमन फैक्टर है, वो है 3. सो इट इज आल्सो नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. सो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे नंबर होंगे? जैसे 2/7, 3/4, -5/6 एंड देन सो ऑन. कुछ भी नंबर हो, ये सब हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे. नेक्स्ट वन, देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ द रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स. नेक्स्ट पॉइंट, two rational numbers with the same denominator can be added by adding their numerators with the same denominator. इसके लिए एग्जांपल देखिए आप. 7/13 प्लस 5/13. हमारे पास ये दो रेशनल नंबर्स है, इन्हें हमें ऐड करना है. अगर इनका रेशनल नंबर में इन दोनों में हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, in this case अगर हमें इन्हें ऐड करना है तो we have to just add their numerator portions. So 7 plus 5 12 upon 13. इजी है. यानी कभी भी हमारे पास दो रेशनल नंबर आ जाए जिनका डिनोमिनेटर सेम हो तो ऐड क्या करना है? हमें ओनली न्यूमरेटर्स को ऐड करना है. क्लियर? इफ द टू रेशनल नंबर्स विद अ डिफरेंट डिनोमिनेटर आर एडेड, देन हमें क्या करना है? अगर उनके जो डिनोमिनेटर हैं वे दोनों अलग होते तो क्या करेंगे? देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स. तो जो भी डिनोमिनेटर है उनका हमें एलसीएम लेना होगा. एंड देन कन्वर्टिंग बोथ द रेशनल नंबर्स, इन दोनों रेशनल नंबर्स को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा? टू देयर इक्विवेलेंट फॉर्म हैविंग द एलसीएम एज द डिनोमिनेटर. और उनको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, उस डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना होगा जो उनका एलसीएम है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 3/4, एक दूसरा नंबर है हमारे पास ऐड करने के लिए 5/8. क्लियर? नाउ बोथ आर नॉट सेम, दे आर
different. They are different. So we have to add both the numbers by taking LCM. So हमें LCM लेना होगा of, first of all take the LCM of 4 and 8. So यहाँ पर LCM कितना है 4 और 8 का? LCM हमारा होगा 8. LCM कितना आएगा 8. So LCM अगर 8 है तो यहाँ पर जो दोनों हमारे पास रेशनल नंबर हैं इन्हें हमें कन्वर्ट करना होगा. 3/4 को रेशनल नंबर, ऐसा रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है जिसका डिनोमिनेटर क्या हो 8 हो. तो इसे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 4 2 8, तो ऊपर भी न्यूमरेटर को भी 2 से और डिनोमिनेटर को भी 2 से, तो ये बन गया 6/8. यहां पर हमारे पास ऑलरेडी 8 है तो इसे अभी चेंज नहीं करना होगा. तो 6/8 प्लस 5/8. क्लियर है? अभी इन दोनों को ऐड कीजिए, सेम मेथड. 8 एज ए न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, एंड 6 + 5 एज ए न्यूमरेटर. तो इनको ऐड कर दीजिए, 11/8 हमारा आंसर होगा. क्लियर? एक और एग्जांपल देखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको एडिशन अच्छे से सीखना होगा. 3/21 आप ले लीजिए, 4/21 प्लस 5/28. आपको इन दोनों को ऐड करना है. Then what is the LCM of these two number? अगर हम इनका LCM लेंगे तो first of all take the LCM of 21 and 28. इन दोनों का LCM कितना होगा? अगर इनका LCM हम लेते हैं then what we get? LCM is equal to 84. LCM एक बार आप ले लीजिए, 21 and 28. 7 से 7 3 7 4 तो 7 3 21 एंड 84 ही एलसीएम है इनका. क्लियर है? सो हमारा एलसीएम आ गया हमारे पास 84. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें इनको कन्वर्ट करना होगा कि 4/21 को हमें कन्वर्ट करना है जिसका रेशियो क्या, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो 84. तो इसे क्या करेंगे हम, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, 16/84. सिमिलरली 5/28 को हम कन्वर्ट करेंगे, सो 15/84. तो यहां से हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं. नाउ वी कैन ऐड बोथ ऑफ दीज. सो 16/84 प्लस 15/84. सो रिजल्ट विल बी 31/84. क्लियर? सो ये हमारे पास रहेगा मेथड टू ऐड टू डिफरेंट रेशनल नंबर्स. नेक्स्ट वन, व्हाइल सब्ट्रैक्टिंग. अगर हमें इन्हें ऐड करना था तो ठीक है, सिमिलर ऊपर को ऐड कर दिया. पर जब हमें सब्ट्रैक्ट करना हो, व्हाइल सब्ट्रैक्टिंग टू रेशनल नंबर्स, देन वी हैव टू ऐड एडिटिव इनवर्स ऑफ द सेकंड रेशनल नंबर जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है. दैट हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड. जैसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5/7 में से 3/5 को. क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस, इसका मीनिंग क्या होगा कि आपके पास जो नंबर है उसमें 5/7 है और दूसरा जो नंबर हमारा बनेगा वो 3/5 का एडिटिव इनवर्स होगा. सो 3/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, प्लस में एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/5. Now 5/7 plus additive inverse of 3/5 minus 3/5. अब इनका एलसीएम ले लीजिए, सेम मेथड. 7 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 7 5 35. आप अगर प्रैक्टिस करें तो डायरेक्ट भी आप कर पाएंगे, जो ये मेथड आपने यहाँ किया. डायरेक्ट कैसे करते हैं देखिए, 7 5 पे गया तो 5 5 25. ठीक है, हम लिखेंगे 5 × 5 प्लस 5 7 पे गए तो -3 × 7. क्लियर? तो 5 5 25 प्लस -21 अपॉन 35. तो 21 -25 -21 अपॉन 35
is equal to 4/35. So 4/35 will be the result. तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम जो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है उस नंबर का हम एडिटिव इनवर्स निकाल सकते हैं, तो एक तरह से एडिशन की तरह ही फॉलो होगा फिर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, टू मल्टीप्लाई टू रेशनल नंबर्स। जब हमें दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना हो, व्हाट वी हैव टू डू, वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स सेपरेटली, यानी कि जो ऊपर ऊपर वाले न्यूमरेटर्स है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे हमारे पास एक रेशियो है P/Q, P1/Q1, एक दूसरी रेशनल नंबर है हमारे पास P2/Q2, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा, कैसे प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, P1 × P2 अपॉन Q1 × Q2, क्लियर। यानी कि न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देन उसके बाद अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, मिनिमाइज हो रहा है, तो उसे हम मिनिमाइज कर देंगे, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वन, डिवाइड वन रेशनल नंबर बाय अदर ए नॉन जीरो रेशनल नंबर। हम कैसे डिवीजन करेंगे, देखिए आपके पास एक रेशनल नंबर है A/B, एक दूसरा रेशनल नंबर हमारे पास है C/D। हमें A/B को C/D से डिवाइड करना है, क्लियर। अब हमें इसे डिवाइड करना है, इट मींस क्या कर सकते हैं, हमने मल्टीप्लिकेशन सीख लिया है, तो डिवीजन कैसे करें कि A/B मल्टीप्लाई ये C/D का रेसिप्रोकल कर दो, D/C। लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड नंबर, क्या है यहां पर C/D, तो C/D का आप रेसिप्रोकल निकालो। अब रेसिप्रोकल आपने, ये सब चीजें आपने फ्रैक्शन वाले में पढ़ी थी, एज इट इज है, सिमिलरली फ्रैक्शन के जैसे ही सारे रूल पढ़ने हमें, ठीक है। सो रेसिप्रोकल क्या होगा हमारे पास, C/D का होगा D/C, क्लियर। डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन आया है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और C/D का हमें रेसिप्रोकल लेना है, वो क्या होगा, D/C। C/D का रेसिप्रोकल D/C, C नीचे चला गया, D ऊपर चला गया, तो A को D से कीजिए AD, अपॉन B को C से कीजिए BC। तो एक जनरल टर्म में अगर हम इसे एक्सप्लेन करें इन दोनों को, तो ऐसे करेंगे, क्लियर। अब इसमें कोई भी आप एग्जांपल लीजिए, उसे मल्टीप्लाई करके देखिए, क्लियर है। These are some questions that you have to do practice in your fair notebook along with this introduction chapters. The first question is the number 2/3 a rational number? So give your views, think about it friends, give your view। आपको अपना व्यू देना है कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। राइट एनी 5 रेशनल नंबर्स, कोई भी आपको जो 5 रेशनल नंबर लगते हैं वो लिख दीजिए। फाइंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दीज नंबर्स, इनको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, ठीक, मिनिमम फॉर्म में, इनमें कुछ भी कॉमन ना हो, इनका HCF या कॉमन वैल्यू जो हो वो केवल 1 हो, ठीक है, इन तीनों नंबरों का। राइट 2 रेशनल नंबर बिटवीन 4 and 9, 4 और 9 के बीच में कोई भी 2 रेशनल नंबर आप फाइंड कीजिए, ओके। सो send these all the questions to my personal WhatsApp number. Thank you.